Welcome to the first episode of Electing an Elective. Name may sound confusing, but I am sure after watching the first episode, you will be sure that which elective you want to actually elect. So all your confusions should be kept aside, and now this is the time to focus on different aspects of different electives so that you can make the right choice. समझ आया? इलेक्टिव्स को लेके जितनी कंफ्यूजन है उसको हटाने के लिए वी हैव गॉट दिस सीरीज। एंड क्योंकि मेरे पास जो था इलेक्टिव वो था इकोनॉमिक लॉज, एंड इकोनॉमिक लॉज के लिए तो मैं आपके साथ काफ़ी सारा मटेरियल और गाइडेंस शेयर कर सकता हूँ, बट माई नॉलेज रिगार्डिंग अदर इलेक्टिव्स इज टू लिमिटेड। एंड टू जस्ट फिल इन दैट गैप आई हैव checked out with my friends जिनकी ऑल इंडिया रैंक आई नवंबर 20 अटेम्प्ट में, एंड दे हैव हैप्पीली एग्रीड टू शेयर देयर इनसाइट्स विद यू. So good luck for this series, and yeah, so here comes the first episode in which three of my friends will share their insights about the elective of international taxation, and let's see how it turns out. Check it out. इंटरनेशनल टैक्सेशन के सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाके प्रूव कर दिया कि भाई ये सब्जेक्ट जिससे आज तक लोग इतने खौफ में थे कि भाई मई का पेपर हो चाहे नवंबर का पेपर हो पुराना, सब लोग बोलते थे कि इंटरनेशनल टैक्स लोगे तो नंबर थोड़े मुश्किल होंगे स्कोर करना, बट दी गर्ल्स हैव प्रूव्ड इट रॉन्ग एंड आज आपके सामने हैं. सो देखते हैं कैसा रहा इनका सफर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक देम टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स. सो स्टार्टिंग विद चार्मी. यस, टेल अस अबाउट योरसेल्फ. Yeah, hello guys. So first of all, wish everyone a very happy Holi. And I passed the November 20 examination with All India rank 13. And I joined KPMG India for my articleship in the Corporate and International Taxation Department. Okay, Rashmi, yeah. Okay, happy Holi guys, first of all. And I am AIR 20 and मैंने अपनी आर्टिकलशिप रायपुर से ही की है from a mixed firm. And जैसा कि शुभम ने कहा, none of my friends took international taxation as elective, but yeah, I did and scored well. So yeah, Rajvi, अब आप बताइए. Yeah, hi everyone. I'm Rajvi and I secured All India rank 3 in the November 20 exams, and I've done my articleship from Deloitte. And wishing everyone a very happy Holi. सो होली का रंगीन माहौल है. सो इस इलेक्टिव को और रंगीन बनाते हुए हम देखेंगे कि भाई एक इलेक्टिव के साथ कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई होती है, कितने क्वेश्चंस होते हैं जब आप एक इलेक्टिव को चूज कर रहे होते हैं. तो उन्हीं कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सो कैसे रहेगा ये पूरा का पूरा वो मैं एक बार आपको गाइड थ्रू कर देता हूँ. तो मैंने कुछ 11 एस्पेक्ट्स हैं जो एक इलेक्टिव को रिलेट करते हुए होते हैं, वो मैंने लिस्ट डाउन करे हैं. सो एक एक करके आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर सकते हैं. सो ऑर्डर एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि उसी ऑर्डर को ऑल्टरनेट करते हुए चलेंगे. लाइक राजवी, चार्मी, रश्मि, एंड देन रश्मि, चार्मी, राजवी, डिपेंडिंग अपॉन जो ऑल्टरनेट पॉइंट्स होंगे. सो चार्मी हमेशा बीच में रहेगी. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज इंटरनेशनल टैक्स एज योर इलेक्टिव? स्टार्टिंग विद राजवी. Okay, so number one, like personally for me, I had done my articleship in a field which had more exposure towards international tax and towards understanding tax treaties and jurisdiction analysis and stuff. So I already had a passion for the subject. And apart from that, I felt that there's a bit of synergy between direct tax and international tax. And since direct tax is a very, very vast subject, it would help me cover the subject in a much systematic manner if I attempt international tax. And also, yeah, I think probably for me, it was basically my love for tax. Okay. Yeah, Charmi, you can share your. Yeah, I completely agree to what Rajvi said. Even I had my articleship with KPMG India. But one more point, what I thought in mind was I had liking for tax since IPCC. So as a subject, it was never a burden for me. So that cross linkage of sections and having all section on tip of your tongue. So that was a really a cool thing for me. I was never stressed of those sections and those vastness of the subject as a whole. So that's why I was very inclined towards taking IT as my international only, as my elective only. Okay. Yeah. Other than this reason that, yeah, I was also interested in tax, but for me, it was like the paper 6 is elective. So I thought if I take international taxation, it would really help me in the paper 7, which is already very vast. So that was also another reason I chose international taxation. So okay. So first of all, मतलब यही है, अगर इसको summarize करा जाए, that all of you had your articleship in taxation. So एक comfort था उस subject के साथ, and then you felt कि
इसकी जो हमारी लर्निंग होगी दैट विल एक्चुअली क्रिएट अ सिनर्जी बिटवीन दिस पेपर एंड द डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर जो नेक्स्ट पेपर रहता है हमारा. सो दिस वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड चूजिंग दिस इलेक्टिव. नाउ आई टॉक अबाउट द स्टडी सोर्सेज. अब कई बच्चों के मन में रहता है कि हम पढ़े कहाँ से अगर इंटरनेशनल टैक्स हम चूज कर रहे हैं एज एन इलेक्टिव. सो रश्मि, लेट्स स्टार्ट विद यू. आपने क्या स्टडी सोर्सेज यूटिलाइज करें? I basically studied the entire study material, and other than that, I actually made a book of all the case studies that the ICI has, right from the MTP to the 7 or 10 case studies it had. So I just did those two things, and also the material that Bhavar Borana sir they give us. All the three SM source book as well as the MTP. Great. Right. Yeah, Charmi. Yeah, almost similar to what approach Rashmi had. But one thing what I had in my mind is I compiled my own material right from May 18 to November 20. All past papers, all RTPs, extra case studies uploaded by ICI, and the question papers itself. So I compiled my own material knowing that there were amendments so that you do not skip on any point. If you compile your own material, you know you are covering, 100%. So that is one thing I did for myself, and obviously covering the base material module and your classes material, whatever you take, whatever classes you've taken for DT and international tax. Yes. So yeah, Rajvi, आपका क्या था material? Correct. The same thing which both of them said. So the ICI study material, classes notes, and compilation of all the case studies. And one thing which I would like to say is like you have to make sure that your index is very, very strong so that whichever material you are referring, you know कि ये topic यही material से refer कर Exactly. Right. Right. Yeah, that was the one thing I did. I made my index myself. I didn't refer to any other person's index. I also made it myself, compiling all the sources that I was studying from. Right. Great. So अब इतना सारा जब आपके पास मटेरियल आ जाता है, लाइक चार्मी ऑल्सो सेड एंड राजवी एग्रीड एंड रश्मि ने भी कहा कि हमने मई 18 से लेके नवंबर 19, क्योंकि वो लास्ट अटेम्प्ट था, तो हमारे पास ये जितने सारे स्टडी सोर्सेज आ जाते हैं, प्लस हमारे पास 2 MTPs और एक्स्ट्रा आ जाती है मई 20 या नवंबर 20 की. अब इन सबका आपने कंपाइल किया, आपने कहा कि हमने इंडेक्स बनाया, सब कुछ किया. अगर मैं बात करूं यूटिलाइजेशन, नॉट टॉकिंग अबाउट यूटिलाइजेशन, जैसे रश्मि ने कहा मैंने भंवर बुराना सर के भी कुछ नोट्स का यूज किया. सो हाउ वाज दैट यूटिलाइजेशन इन ऑल दिस प्रिपरेशन? इफ आई टॉक अबाउट कि कितना टाइम आप किस स्टडी सोर्स को एलोकेट करते थे, लाइक व्हाट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टडी फॉर दिस सब्जेक्ट? I'll start. Rajvi you can start. So as for me, like the institute study mat was the main source. But if there were certain topics, say transfer pricing or NR taxation for that matter, जिसमें I was referring my class notes, I made sure कि वो section के बाद I refer the study mat and see whether there's anything new or not, or whether I need to refer which language should I write in the exam. So that is also very important. Since it's open book, they would expect you to write the technical language, right? So you have to make sure कि मतलब जो भी material refer करो, you ultimately reconcile it with the institute study material. Agreed. Right. Yeah, Charmi. Yeah. Your points. Completely agree with what Rajvi said. So what I used to do is I used to always take up international tax right after studying DT. So for the international taxation, Bhanwar Burana sir has this compact. So for the common topics, I used to because for DT we have to learn them by heart. So I used to learn them and then apply while solving case studies for international taxation. So for my go-to thing for international taxation was solving case studies rather than reading the same topics or concepts again and again. So I used to do it at the time of studying my DT, and then I used to apply while solving case studies. So that's how I took it. Yeah. This is the exact thing which I did. I also kept my class notes as the base, and whatever extra things there were in the material, I also took care of that. And my main focus was on case studies only because we had to solve case studies in exam. So rather than reading it again and again, I used to solve it. I solved it many times before exam. Okay, so एक चीज और क्लैरिफाई कर लेते हैं, लाइक हम तीनों का अटेम्प्ट मई 20 अटेम्प्ट था तीनों का. So कहीं ना कहीं लगा कि अटेम्प्ट अगर डेफर हुआ, सो यू ऑल्सो गेव सफिशिएंट टाइम टू दिस इलेक्टिव ऑल्सो, कि जब मेरा अटेम्प्ट डेफर हो जाता है, सो दैट डिड दैट मेक सम डिफरेंस देयर, यू फील? सो
Like you can just share your points, जिसको भी कुछ लगता है कि है यहाँ पे शेयर करने का. नहीं, it really made a great difference because for me, I really thought my elective was not that easy. So I really gave time to the case studies because normal पढ़ाई हो चुकी थी, but I couldn't focus on the case study much. So I did that in those 6 months then. Yeah. Okay. So now comes the point कि इलेक्टिव को जनरली लोग जो समझते हैं कि ओपन बुक है, सो हो जाएगा, ठीक है, बाकी 7 सब्जेक्ट्स हैं उन पे हमें याद करके जाना है, वहां पे अप्लाई करना है. बहुत आसान काम नहीं है सीए फाइनल को कंसीडर करते हुए जिस तरह से अभी पेपर आ रहे हैं. नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्टिव्स, स्पेशली इंटरनेशनल टैक्स, कितना टाइम दिया इस इलेक्टिव को इन कंपैरिजन टू द 7 अदर सब्जेक्ट्स, वो एक बार उस पे थोड़ा मतलब बताओ कि लाइक नंबर ऑफ रिवीजन्स इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स, और एक रिवीजन इसका कितना टाइम ले जाता था आपका, वो एक बार जानना चाहेंगे. So yeah, Rashmi, you can start. Actually, frankly speaking, I didn't count the number of revisions, but yes, comparatively दूसरे subject से ज़्यादा जल्दी तो हो जाता था, but I did take care of this subject also, so I can't really tell you the number else. So I think Tami and Ravi should answer this. Yeah. As we consider our first reading, the very first reading for CA final, obviously ours was an exceptional year, so we got a little extra time. But if I consider a normal scenario, if all other subjects take 10 to 11 days, time, if I consider one subject at a time, so for elective it was 7 to 8 days. 7 days I did give to international taxation after completing my DT, because first read was the read where I kind of was very sure that I have to do everything in the first read, and the number of revisions was equivalent to my revisions for other subjects also, but the revisions were quite crisper in terms of revising the summary which I made or revising only the important points. So number of revisions were same, and first elaborate reading was around 7 to 8 days. ओके, सो फिर ये जो 7 to 8 डेज का जैसे आपने बताया कि रहा कि लाइक फर्स्ट रीडिंग 7 to 8 डेज की रही, सो उसके बाद आपको लगा कि लाइक लर्निंग कर्व कंपेयर टू जो आपके अदर सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस था इन द लर्निंग कर्व, कि भाई अगली बार आप 7 to 8 डेज से जनरली सब्जेक्ट्स पे 4 to 3 डेज पे आते हो कहीं, क्योंकि मैंने जैसे इकोनॉमिक लॉज लिया था तो मैं सीधा शायद से 2 या 3 दिन पे आ गया था, एंड इट वाज फाइन फॉर मी. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इलेक्टिव में एक लर्निंग कर्व काफी अच्छा बन जाता है, यू गेट टू नो एंड इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम. Because you don't need to mug up anything, na? You can just refer to it. So that's why it creates a difference. Yeah, you just need to understand it. So Rajvi, would you like to add on something here? कुछ अलग जो लगता है? So basically the same thing, but like what I did was I did international tax first and then started with my DT in the first read. Okay. So it took me around 4 to 5 days for international tax. And obviously that would count for DT also, so my 30 marks is covered there, and then I spared separate time for the other DT chapters, and case studies I did with the other subjects raat ko, like 1 hour 2 hour I used to do case studies. I didn't devote separate days because obviously that time the postponement had not come in, so agreed, we didn't have a lot of time for the case studies. But that actually gives you a more hold over the subject, since you're doing case studies every day, so आपका revise भी उतना होते जाएगा. Right. So and it becomes too much if you do it in just one day, so it becomes boring also. Yeah. Right. So अभी like आपको पता होगा कि लेटेस्ट ICAI ने केस स्टडी डाइजेस्ट निकाला है, which is very difficult for the people who are giving in May and November 2021. उनके लिए डाइजेस्ट करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है कि नई चीज और आ गई है हमारे लिए. सो मुझे जो लगता है कि राजवी की जो अप्रोच थी, एंड मुझे लगता है काफी लोग ये अप्रोच फॉलो करते हैं कि वो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ रात को 1-1, 2-2 घंटा निकाल के वो केस स्टडी सॉल्व कर लेते हैं. सो नाउ एक्चुअली ICAI has given you that material कि आप टू स्टे इन टच विद दैट सब्जेक्ट, आप रात को 1-1, 2-2 केस स्टडी करो. अगर 15 केस स्टडी भी है तो आपकी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म हो जाएंगी. सो इट इज नॉट क्रिएटिंग एन एडिशनल बर्डन ऑन यू, बस जस्ट गिविंग यू एन यू कैन से अ मीडियम थ्रू विच यू कैन रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स. ग्रेट. सो मॉक टेस्ट का काफी अच्छा रोल रहता है हमारे सीए फाइनल्स में. सो राजवी से स्टार्ट करते हैं. कितने मॉक्स दिए? एंड मैं आइडल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, लाइक अगर मानते कि आपके पास इतना सारा टाइम ना होता जितना नवंबर 20 के लिए मिल गया, आइडल सिनेरियो में हाउ मेनी मॉक्स वुड यू हैव गिवन इन सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट, कंसीडरिंग कि आपका टैक्स में एक अच्छा बेस रहा था, वो मानते हुए. या
So I think in writing, like sparing separate 4 hours, you should give at least one mock test for elective, because that is when I realized कि 1 घंटे में एक case study नहीं होता है. Although you feel कि बहुत time है, but replicating the same thing from the book and analyzing the provisions takes a lot of time. So you should Agreed. at least write one paper like in an exam situation. And apart from that, like I think ऐसा you can just solve case studies at your own pace, say half an hour, 45 minutes में just write your answers in pencil and then check it with the suggested. So that would work otherwise. So ये मॉक आपने खुद दिया था या किसी मतलब लाइक एजेंसी तो नहीं बोलना चाहिए, लाइक वाज देयर अ प्रॉपर टेस्ट सीरीज जहाँ पे टेस्ट सीरीज Test series, like I had done classes from JK Shah, तो उसमें ही test series था, तो there I had like given test for international taxation as well. तीनों का सेम केस था क्या कि Yeah, I had given one mock in my class, one with a test series, and as Rajvi rightly pointed out, rather than writing the theoretical provisions before approaching any case study, I mean after reading the question, I used to make my own roadmap. कि शायद ये एग्जाम में आता तो मैं क्या लिखती, तो मैं खुद ही लिख लेती थी. काफी वहाँ पे गलत होता था ऑब्वियसली, बिकॉज यू आर स्टिल लर्निंग. तो मैं खुद के लिए एक टेस्ट वहीं बना लेती थी कि ये शायद एग्जाम में आता तो मैं क्या करती फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो वो एक अप्रोच भी काफी हेल्पफुल था कुछ नई चीज को क्रैक करने में. Yeah, I also did the same thing, and considering कि हमको extra time मिला, but अगर नहीं मिलता तो I think I would have been able to give only one mock. Seriously सिर्फ एक दे पाती उतने टाइम. तो ठीक है, कम से कम एक मॉक तो देना चाहिए एक ताकि तो देना exam चाहिए. शॉक ना लगे. सो Yeah. नाउ जहां से हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया था वापस वहीं पे चलते हैं. मैंने कहा था कि ये जानते हुए कि इंटरनेशनल टैक्स का पेपर इतना मुश्किल आ रहा है 3-4 अटेम्प्ट से, फिर भी आपने ये चूज किया. माना पैशन है, कितना ही पैशन हो यार, वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी दिखाया जा सकता है व्हाइल डूइंग अ जॉब, और आर्टिकलशिप भी टैक्सेशन में चल रही है. एट द एंड ऑफ द डे हमारे गोल तो एक ही होता है कि सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए. सो क्या चैलेंजेस आए इस सब्जेक्ट को लेकर, अंडरस्टैंडिंग की पास्ट के जो आप तो स्कैनर वगैरह यूज कर रहे थे, लाइक मे 18 से लेके अब तक के सारे पेपर आप लोगों ने देखे हैं. तो अगर मैं उन चैलेंजेस की बात करूं कि भाई पेपर देख के पता तो चल गया होगा कि ये चीज स्टडी मटेरियल में नहीं मिल रही, जैसे उनको नहीं मिली वो आपको भी मुझे लगता नहीं कि कहीं से या मिल गई, पता नहीं. सो वही आई थिंक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. सो एनीबॉडी कैन स्टार्ट, कोई ऐसा वो नहीं है. नहीं, सबसे पहले जब मैंने देखा तो या देयर वर मेनी थिंग्स, तो मैंने उन्हीं में मार्क कर लिया कि ओके दिस वाज न्यू, एंड दैट वर एक्चुअली द क्लैरिफिकेशन by CBDT. So when I searched in the study material, there were some new clarifications also. So I took care of that कि वो आ सकते एग्जाम्स में, क्लैरिफिकेशन से क्वेश्चंस बनते हैं. एंड दूसरी चीज मुझे डिफिकल्टी ये लगी कि since none of my friends took international taxation, I really felt alone because there was no one to discuss. So खुद ही प्रॉब्लम में आके बहुत टाइम लगा के कुछ सोल्यूशन मिल पाना was really challenging. But अदर देन दैट मेरा एक ही था कि पेपर 7 के लिए बहुत जरूरी था कि मैं पेपर 6 इंटरनेशनल टैक्सेशन लूं. तो यही रीजन था. Yeah. So just to add what Rashmi said, मैं ये सोच के चल रही थी कि वहाँ काफी पास पेपर्स देखे थे, सीनियर्स के रिव्यूज लिए थे, काफी लेंथी हुए हैं, डिफिकल्टी लेवल वो है. बट मेरा एक चीज बहुत ही क्लियर था कि अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, अगर आप थियोरेटिकल प्रोविजन को अप्लाई कर सकते हो, तो वो डिफिकल्ट चीज भी आप कहीं ना कहीं अप्रोच कर पाओगे आफ्टर टेकिंग इनफ प्रैक्टिस. तो इन स्पाइट ऑफ नोइंग के पास अटेम्प्ट थोड़े डिफिकल्ट आ रहे हैं, डायरेक्टली उठ के चीजें नहीं आ रही है, बट आई वाज क्लियर कि अगर if I am very good at my concepts and if I know how to apply something, then I will be able to sail through. Agreed. I completely agree with Rashmi and Charmi on this. Apart from that, I think, yeah, so you have to focus on your concepts, and also like if you see the past papers, 5 केस स्टडीज में से 2 या मतलब एट मैक्स 3 केस स्टडीज एकदम आउट ऑफ द सिलेबस टाइप्स होगा, मतलब उसमें 2-3 क्वेश्चन, बट काफी चीजें मैनेजेबल भी होती है. सो यू हैव टू सर्च फॉर थिंग्स व्हिच विल फेच यू मार्क्स, एंड यू कैन जस्ट go into stress seeing कि ये बाहर का पूछ लिया. You have to find ways to get marks there and keep yourself motivated. And I think कि लोगों ने इतना पहले से ही डरा जाता that मैंने सच में बहुत एक्स्ट्रा मेहनत की अपने इलेक्टिव के लिए compared to my friends who took other subjects as their elective. So I was prepared for a bad paper only, but it actually helped me because मुझे पेपर अच्छा लगा. हाँ, इंटरनेशनल टैक्स उतना बुरा नहीं था, अच्छा पेपर था कंपेयर टू अगर हम लास्ट के अटेम्प्ट्स की बात करें. So,
वो चीज हुई कि मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे बस एक ही लर्निंग है कि अगर आपका किसी चीज में कोई इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट को छोड़ो मत जस्ट बिकॉज कि अदर्स आर सेइंग कि पास में पेपर्स खराब आए हैं। Exactly. एंड जैसे रश्मि जी ने कहा कि सीपीटीटी की क्लैरिफिकेशंस आ रही थी नई नई, वो पेपर में इनकॉर्पोरेट कर रहे थे। अब आपको कोई चीज पता चल गई है तो उसको भी मत छोड़ो ये सोच के कि वो पेपर में नहीं आएगी फिर से। सो मेक योर एक्स्ट्रा एफर्ट एंड एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी रिवॉर्डिंग। सो नाउ कमिंग द नेक्स्ट पार्ट जिसपे अभी हमने डिस्कशन थोड़ी सी की भी थी इंडेक्स से रिगार्डिंग। सो सबने यहाँ पे अपना इंडेक्स बनाया था। इंडेक्स तो आई थिंक हर कोई लेके गया ही होगा। तो वो इंडेक्स आपने किसी का लिया था, अपना बनाया था, एंड आई थिंक वो हम शेयर भी कर सकते हैं औरों के साथ सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। एंड अगर उनको लगता है वो अपना बनाया तो अपना बना लें जैसा जिसको ठीक लगे। सो Right. बता सकते हो एक एक करके उसके बारे में। सो मैंने आरिश खान सर का इंडेक्स यूज किया था फॉर द मॉड्यूल। और जो मैंने बताया था कि मैंने खुद का कंपाइलेशन बनाया था, वो तो मैंने अपने आप से प्रिंट लेके स्पाइरल करा के किया था, तो वहां तो मैंने नंबरिंग खुद करी थी। तो वो एक इंडेक्स था इजी रेफरेंस के लिए कि शायद सेम कंसेप्ट उठ के आ जाए, तो मैं वो कंपाइलेशन से देख लूंगी ताकि प्रेजेंटेशन में इजी हो, पता चले कितना लिखना है। एंड फॉर मॉड्यूल एग्जॉस्टिव वो कवर करने के लिए आरिश खान सर का इंडेक्स यूज करा था मैंने। या राजवी आपका मैंने अपना ही प्रिपेयर किया था, लाइक आई जस्ट लाइक रिटन इन एक्सेल वॉट एवर वर द इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स एंड वॉट वॉज द सोर्स फ्रॉम वेयर आई एम रिफरिंग वॉट, एंड वैसा करके मैंने ऐसा कलरफुल इंडेक्स बना लिया था। एंड दिस आई हैव अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल आल्सो वेरी रिसेंटली, so Great. people can for that also. But I think yeah, index is very important for case studies as well as for the topics, like each chapter में कौन से topics है। Great. And Rashmi? Exactly. So, I actually did it in copy. I wrote my index. So, कोई भी chapter, if I used to start, I used to study it with one thing and then with the SM. तो मैं कंपाइल करके ही मैंने इंडेक्स बनाया कि ये टॉपिक यहाँ से फिर वो टॉपिक वहां, सिर्फ टॉपिक वाइज इंडेक्स बनाया था। सो ओके, सो यहाँ पे किसी ने सेल्फ किया है, किसी ने किसी टीचर का उठाया है, एंड मुझे लगता है कि दोनों चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल विद इट, क्योंकि एट द एंड वही मैटर करता है। वहां पे आप इतना सारा मटेरियल लेके जा रहे हो, अगर आपके पास इंडेक्स ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कौन सी चीज कहाँ लिखी है, कैसे, एंड वो काफी हेल्प करता है। अब आप इतना सारा मटेरियल लेके आते हो। या एक्चुअली मैंने भी सोचा था कि आई नो एवरीथिंग, आई डोंट नीड एन इंडेक्स। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे इंडेक्स की जरूरत पड़ गई। आई डिडंट नो कि डीआरटी कहाँ है, कुछ नहीं पता था। तो सीरियसली इंडेक्स इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। ग्रेट। सो अब जैसे आपने कहा कि डीआरटी कहाँ है, अब हम इतनी सारी चीजें लेके जाएंगे एग्जाम हॉल में तो चीजें ढूंढना तो मुश्किल पड़ सकता है। और क्योंकि ओपन बुक है तो इंसान की फितरत ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लेके चलो अपने साथ, ये दैट्स द नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। सो मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक किसी का भी होगा कि जब आपको ऐसा ओपन बुक एग्जाम मिल जाता है तो आपको क्या लेके जाना चाहिए एग्जाम हॉल में सो दैट यू आर कंफर्टेबल इन दोस 3 hours एंड दैट इज सफिशिएंट टू क्लियर योर एग्जाम्स विद गुड मार्क्स। सो राजवी से स्टार्ट करते हैं। या Okay, so I carried the international tax module. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने सोचा कि डीटी का भी कुछ आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल पेनल्टीज, टीडीएस वगैरह कुछ भी। तो मैंने डीटी की भी सारी बुक्स कैरी की थी, लाइक ऑल द मॉड्यूल्स एंड ऑल द हैंड रिटन नोट्स। बट हमारे अटेम्प्ट में इतना कुछ पूछा नहीं, बट दे मे आस्क, सो यू कैन नेवर टेक अ रिस्क देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट वट एवर, लाइक द इंडेक्स, द हैंड रिटन समरीज एंड एवरीथिंग। And I'd also carried the BEAR Act with me because I thought that what if like a new question comes up and you need to read the BEAR section and understand the provisions and the explanations. So I'd carried the BEAR Act and एक दो question में वो काफी help भी किया था क्योंकि वो थोड़ा बाहर से पूछा गया था. So I think it's good to carry the BEAR Act also. Great. Almost similar approach with Rajvi had, but just 2 or 3 points to add here. Along with the act हमें रूल्स भी कैरी करने हैं बिकॉज नवंबर 19 वगैरह अटेम्प्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन रूल्स से उठ के आए थे जिसका इलेबरेट मतलब प्रोविजन स्टडी मॉड्यूल में नहीं दिया था. बट अगर आप रूल्स देखते तो वो लिटरली कॉपी करके आंसर लिखना था वहां पे. तो अगर वो रूल बुक भी होती है एक्ट के साथ तो वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस OECD एंड UN कैरी करना भी बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ व्हाट आई सीज वो लोग वही आर्टिकल का क्वेश्चन पूछते हैं जिसका मेंशन मॉड्यूल में नहीं है. इट इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन बट उसका मेंशन मॉड्यूल में नहीं है. तो जिसने वो OECD UN कैरी नहीं किया है दे विल वंडर कि अब इसका आंसर क्या आएगा. सो OECD UN रूल्स एंड टू बी वेरी सेफ मैंने सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज की ट्रीटीज भी कैरी की थी
अरे So बाप रे, that is also very important. So ये मेरे को पता है 3 कितनी things. खुशी हो रही है, मैंने इकोनॉमिक लॉज लिया। इतनी तो चीजें भाई। मेरा ऐसा अप्रोच था हाँ कि हाँ उसको ये पूरे चीज को 2 चीज में डिवाइड करो, योर प्राइमरी मटेरियल एंड योर सेकेंडरी मटेरियल। वेट वगैरह का तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये हाँ रूल्स वगैरह बहुत ही काम में आते हैं अगर कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ गए तो। OECD एंड UN एंड योर इनकम टैक्स रूल्स ये भी कैरी करना चाहिए मेरे हिसाब से। ट्रीटीज इफ यू डोंट डू इट्स फाइन, बिकॉज नाउअडेज व्हाट वी सी इज दे गिव एक्सट्रैक्ट, तो वो नहीं किया तो चलेगा। Yeah, दैट वाज exactly. मैंने सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज के लिए वो लिया था। हाँ, ये काफी सही किया यार। Yeah. मतलब इतना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो मुझे नहीं लगता कोई कंपनी बना के चले। पर ठीक है, जब सीए फाइनल की बात हो तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए यार। रश्मि Right. बताइए आप। No. The same thing except for the tax treaty and rules. Everything else was same, obviously. ठीक है, तो हम टैक्स ट्रीटीज और रूल्स को सेकेंडरी मटेरियल में डाल देते हैं कि भाई Right. ठीक है, लेके जाओ, कोई बुराई नहीं है, आपके हाँ. पास अलाउ तो करते हैं वो ले जाने के लिए, रख दो साइड में। Right. कल को कोई ऐसी चीज आ गई तो एटलीस्ट यू हैव हाँ. समथिंग टू गो थ्रू। तो ये Right. मेनली जितना मुझे समझ आया, मॉड्यूल्स ले जाना बहुत जरूरी है, चाहे वो डीटी का हो चाहे इंटरनेशनल टैक्स का हो, क्योंकि लॉजिकल भी है कि इंटरनेशनल टैक्स डीटी से ही उठ के आया है। सो कोई भी DT चीज से आता है. रिगार्डिंग पूछी जा सकती है बिल्कुल. पेपर में। देन बेयर एक्ट अगर रखना है तो रख सकते हो आप, कीपिंग इन माइंड कि कुछ हाँ. चीजें हमारे मॉड्यूल्स में कवर नहीं होती, इट इज वेरी सिलेक्टिव इन नेचर। एंड देन या जैसे चार्मी ने कहा कि सेकेंडरी मटेरियल भी रख लो टू बी ऑन द सेफर साइड। Yeah, and case studies and index, your index and case हाँ. केस studies. इज एन Case इंडेक्स, study. या Yeah. That is covered in our primary material. Yeah, friends. सो जैसे इकोनॉमिक लॉज में ना क्या है कि एक ट्रेंड चल रहा है कि एक पुराने एमटीपी की एक केस स्टडी रिपीट हो जाती है। लाइक नवंबर 20 में ऐसा हुआ, एंड आई हर्ड कि जैन 21 में भी ऐसा हुआ कि पुराने एमटीपी की केस स्टडी एज इट इज रिपीट हो गई। सो ऐसा इंटरनेशनल टैक्स में भी कोई ट्रेंड है क्या? How lucky they are. No, each and every case study was obviously new. ओके Nothing of Yeah. that sort happened. And yeah, each and every case study was new and they kind of focused on small aspects, not only those larger important concepts, 5-star concepts, which we, kind of stress a lot. They targeted a lot, many small concepts, which, while studying also we could easily miss. तो इंटरनेशनल टैक्स में बहुत ही डाइवर्स पेपर था और सारे पांचों 5 केस स्टडीज में सारे ऑलमोस्ट कहीं से स्मॉल लास्ट सब कंसेप्ट टेस्ट किए थे और रिपीटेशन तो मुझे ऐसे उठ के कुछ भी आई डिडंट नोटिस दैट। ओके, वो चीज सिर्फ इकोनॉमिक लॉज में हुई थी, बट ठीक है, हमें भी नहीं पता था क्योंकि वो एमटीपी अगस्त 18 की वो था रिपीटेशन। सो सिंस मेरा तो नवंबर अटेम्प्ट था, आई डिड नॉट गेट टाइम टू डू दैट, बट स्टिल या देयर वाज सम रिपीटेशन। सो मुझे लगा कि इंटरनेशनल टैक्स में भी ऐसा ट्रेंड चल रहा हो तो स्टूडेंट गेट सम इनसाइट। ग्रेट। सो अब आते हैं मेरे हिसाब से अब हम थोड़ा सा पेपर की तरफ मूव करेंगे। लाइक लास्ट 1.5 डे में बाकी सब्जेक्ट्स में तो ये होता है कि भाई पूरा सिलेबस कैसे कवर करें, बट मुझे जितना लगा था कि इलेक्टिव में इन माय केस इन इकोनॉमिक लॉज 1.5 डेज टू वास्ट टू कवर सच काइंड ऑफ सिलेबस। सो वो एक बार 2 बार 3 बार भी आप कवर कर सकते हो। सो आपका क्या स्ट्रेटेजी रहा था कि लाइक 1.5 डे में कैसे हमें इंटरनेशनल टैक्स को कवर करना है? तो वो आप शेयर कर सकते हो, या रश्मि यू कैन स्टार्ट। I completed the material first, and then I did all the case study once again because I had enough time to do that. So, and the next morning I could also read some of the topics which I thought I needed to read them again. So there was enough time कि आप एक बार पढ़ लो, case studies भी एक बार सारी पढ़ लो, and अगर और भी कुछ topic वापस देखने तो you can always do that. There was sufficient time. Right. Right. Yeah. तो मैंने क्या किया था, रादर देन जस्ट ग्लैंसिंग और रीडिंग द मटेरियल, मैंने अपने इंटरनेशनल टैक्सेशन का लर्निंग मेरे इलेक्टिव के दिन कर लिया था, ताकि मेरे डीटी पेपर के दिन मुझे इंटरनेशनल का वो 30 मार्क्स का पार्ट लर्न करने की जरूरत ना हो। तो ग्लैंस करने के बदले मैंने वो कॉम्पैक्ट जो पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन का है उसको पूरा लर्न कर लिया था, एज इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई विदाउट ओपन बुक पेपर। वो प्लस केस स्टडीज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द लैग ऑफ कि कैसे लिखना है अगेन जस्ट बिफोर द एग्जाम डे। सो केस स्टडीज एंड लर्निंग द एंटायर इंटरनेशनल मटेरियल वो डीटी पेपर के लिए, तो वैसे ही मैंने प्रिपेयर किया था इंटरनेशनल के लिए। ऑब्वियसली प्लस और माइनस वो जो कंसेप्ट थोड़े से एक्स्ट्रा पढ़ने थे वो भी पढ़ लिए थे। Correct. The same thing. So हमारे केस में like we had an extra off, so we had 2.5 days. मैंने थोड़ा टाइम डीटी के लिए दिया था, and then I started international tag.
And उसमें again, Right. like as Charmi mentioned, I tried to do everything as if I don't have an open book paper, so that DT में मुझे वापस वो देखना ना पड़े. And then I had marked certain case studies to do, ऐसे the ones which were tricky, which I did it again, and then kind of revised the stuff which I found important. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो वही है कि मतलब लाइक आई थिंक मैंने भी इंटरनेशनल टैक्स बचपन में कह रहा हूँ लाइक 2 साल पहले सोचा था कि जब मैं सीए फाइनल का अटेम्प्ट दूंगा तो मैं भी इंटरनेशनल टैक्स लूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ये था कि डीटी का सिलेबस सब कहते हैं वास्ट रहता है, तो वो 1.5 डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीटी में, एंड वहां पे कहीं ना कहीं एक लेवरेज मिलेगी 30 मार्क्स की. बट या क्योंकि आप लोगों ने तो पूरे मजे ले लिए उस चीज के, तो अच्छा ही रहा, एंड आई होप कमिंग अटेम्प्ट्स में भी ये जो कारवाई चलता रहे. नाउ कम्स द पेपर. अब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ गया, अब आपके सामने पास्ट भी होगा कि भाई ये था पहले और अब पेपर सामने आ गया है, एंड बाकी इलेक्टिव्स के भी बच्चे आसपास बैठे हुए हैं. सो उस पेपर को करते वक्त आपके मन में क्या क्या चलता था, कैसे आप उन थॉट्स को प्रोसेस करते थे, एंड देन क्योंकि अपने 1.5 डे में ही पढ़ा है सारा कुछ, सो वो सारे प्रोविजंस आपके सामने, आपका मटेरियल आपके साथ है. सो 15 मिनट्स मिलते हैं हमें रीडिंग टाइम के लिए, एंड देन पेपर स्टार्ट होता है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ इलेबोरेट आंसर इन दिस केस कि क्या रहता था वो पूरा जो यू कैन से 4 hours 15 मिनट्स का जो टाइम है वो कैसे गुजरता था इस पेपर में. सो एनीबडी कैन स्टार्ट, द हाउस इज ओपन. या पहले 15 मिनट्स की अगर हम बात करें, मेरा टारगेट रहता था इन दो 15 मिनट आई शुड नो दैट विच केस स्टडी आई नीड टू लीव. तो मैं मेन क्वेश्चन एमसीक्यू और मेन क्वेश्चन सीधा पढ़ती थी, एंड उस बेसिस पे एक केस स्टडी लीव करने का सोच लेती थी. बाद में ऑब्वियसली आई रीड इट वंस अगेन, बट मैं पहले 15 मिनट्स में विच केस स्टडी टू लीव मैंने वो डिसाइड किया था, सिर्फ वही किया था. ओके, सो 15 मिनट्स का ये हो गया, ठीक है. एंड किसी का कुछ डिफरेंट था इस 15 मिनट्स में? या तो मुझे एक चीज ऐड करनी थी, रश्मि ने बहुत ही सही बताया. तो वो लीव कैसे करना है, मैं वो केस पे आई. तो ऐसी कोई केस स्टडी नहीं होती जो तुम्हें पूरी आती होती है. एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा हुआ. एक दो सब क्वेश्चन ऐसे होते ही है जिनकी तुम्हें कोई आइडिया नहीं होती है, या आइडिया होती है बट उसको एक्चुअली कैसे लिखेंगे या कैसे प्रेजेंट करेंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ा अनक्लियर होता है. तो मेरा ये टारगेट था कि जो केस स्टडी के मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन प्रेजेंटेबल तरीके से आते हो, जिसका मैं मोस्ट सर्टेनिटी से आंसर लिख सकूं, उसी को मैं टारगेट करूं. तो वो मेरा एलिमिनेशन क्राइटेरिया वो था कि टाइम कंसिडर करते हुए और क्रिस्प मैटर कंसिडर करते हुए मैं कौन सा बेस्ट दे पाऊंगी ये 4 में, एंड कहाँ मेरा कंसेप्ट भी अच्छे से मैं दिखा पाऊंगी एग्जामिनर को कि दैट या आई एम प्रूव इट. तो जो चार्मी, हेलो. हेलो. या फाइन. या तो वो 50 मिनट वो चार केस स्टडीज आप सिलेक्ट करते थे जो आपको बेस्ट आती हैं, हाँ. एंड उस हिसाब से आप देख लेते थे कि पांचवी कौन सी है जो छोड़नी है. राइट. या दिस वाज द केस. एंड राजवी, एनीथिंग सिमिलर और डिफरेंट? Yeah, so the same thing. So I basically tried to eliminate one and decide the order of the remaining 4. And I tried to Right. read the content of the case study also very very quickly to see कि मतलब I am acquainted with the topic. ऐसा कुछ एकदम बाहर से नहीं हाँ. पूछ लिया है तो वो मेरा सीधा eliminate ही ना हो जाए वैसे. So the Right. same approach. सो ये एलिमिनेट Yeah. मतलब कैसे करते थे? ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव, कि भाई एमसीक्यू में तो पक्का है कि अगर आंसर ठीक है तो हाँ. नंबर मिलेंगे. डिस्क्रिप्टिव में फिर भी एक एग्जामिनर के पास आप चॉइस छोड़ देते हो नंबर देने की, तो वो चीज Right. क्या कंसीडर करते थे? वाज एमसीक्यूज गिवन अ मोर वेटेज कंपेयर्ड टू डिस्क्रिप्टिव, लाइक व्हाट वाज लाइक दैट? I think both of them. Like Both अगर of- Yeah. Okay. even if you are comfortable with the MCQs, लेकिन subjective में ऐसा हाँ. ज्यादा weightage का कोई question है जो like you are not aware about it completely, so it's good to avoid that case study and do the other one. राइट. और एक और Yeah, चीज थी, रादर देन रीडिंग द एंटायर केस स्टडी, इतना तुम 5 केस स्टडीज नहीं रीड कर पाते हो, तो हमें हाँ. वो कंसेप्ट पिक करने होते हैं. कंसेप्ट पिक करने होते हैं, टैक्टिक कौन से प्रोविजन पे वो लोग हिट कर रहे हैं और क्या वो प्रोविजन पे तुम्हारा कमांड है. तो वो तुम्हें वो एलिमिनेशन क्राइटेरिया में बहुत ही काम आता है. वो पूरा तो हम पढ़ ही नहीं सकते, तो वो कंसेप्ट समझ में आ जाता है पढ़ के कि ये केस स्टडी ये सेक्शन पे डील कर रहा है, तो क्या हम इससे कंफर्टेबल है. तो वो थोड़ा टाइम भी सेव करता है ऑर्डर वगैरह डिसाइड करने में, तो वो एक पॉइंट भी था.
Right, correct. सिमिलर स्ट्रेटेजी आई थिंक इकोनॉमिक लॉज में भी होती है, क्योंकि दोनों ही प्रोविजंस वाले हैं, सो कहीं ना कहीं आपको पता चल ही जाता है क्वेश्चन पढ़ के कि क्या मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाऊंगा या नहीं, या ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आ गया है। ग्रेट। Right. एंड अब मैं बात करूं 4 घंटे की, अब जब हमारे पास 4 घंटे मिल जाते हैं, सो क्या वो 1 आवर पर केस स्टडी हमें लेके चलना चाहिए? राइटिंग स्पीड स्टार्टिंग से तेज रहती है या नहीं? मॉक से कुछ फायदा हुआ था पेपर में, कहीं ना कहीं कुछ लगाओ। और कई बार ये भी होता है कि हमें एक क्वेश्चन का एक पार्ट नहीं आ रहा होता, फिर हम दूसरे पे स्किप कर जाएं या उसका आंसर उस टाइम पे ढूंढने पे मेहनत करें। तो कुछ इस तरह के एस्पेक्ट्स है जो वहां पे कंसीडर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट टाइम इज लिमिटेड एंड आउटपुट यू हैव टू गिव मैक्सिमम। सो वो चीज एक बार हाँ बताओ कि अगर कैसे किया वो। Correct. So basically, So I had one like thing that I yeah. Go ahead. yeah, Raji, carry on. No, It's fine. कोई नहीं, जीडी नहीं चल रहा, ठीक है। राजवी, नहीं राजू yeah. राजवी यू कैन स्टार्ट। Okay, great. So I had obviously allotted like 1 hour per case study, और उसमें अगर suppose like there is any question which I feel कि मुझे नहीं strike हो रहा है या I'm not able to get it, I used to skip it then and there and not waste a lot of time thinking about it and going on to the next case study. And then at the end you can come back to that question again, and I think probably तब तक आपके mind में भी subconscious mind is able to build up an answer for that and you can write something on that. Yes. But it's very important to stick to the time, because इसमें open book है, so you tend to like write a lot and tend to exaggerate, but you should ensure कि आपका उतने time में उतना question complete हो रहा है. बिल्कुल Right. बिल्कुल। Yeah, I kind of second to what Rajvi said, but मैंने वो प्लान किया था, बट मैं उससे अधीर नहीं कर पाई। मेरे स्टार्टिंग के 3 केस स्टडीज में बहुत टाइम चले गया, और लास्ट केस स्टडी ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ऐसा था, कुछ 20 मिनट बचे हैं और पूरा 25 मार्क्स सॉल्व करना है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन के प्लीज वो अधीर करना, नहीं आ रहा है तो प्लीज थोड़ा आगे बढ़ना। और वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय राजवी के हमें प्रोविजन लिख के वो पैरा भर के बहुत सारा कॉपी नहीं करना है। वो 4 मार्क के क्वेश्चंस होते, तो जितना तुम अपना एनालिसिस ज्यादा लिखोगे दैट वुड फेच यू मोर मार्क्स रादर देन कॉपिंग द प्रोविजन, क्योंकि वो प्रोविजन की बड़ी बड़ी लाइंस लिखने में भी बहुत ज्यादा टाइम चले जाता है। तो यू नीड टू बी वॉचफुल कि तुम्हारा मिक्सचर सही हो और ज्यादा फोकस एनालिसिस पार्ट पे हो, वो 4 मार्क्स के डिस्क्रीट क्वेश्चंस के लिए। ग्रेट। या रश्मि, फाइनली you have got the chance. Actually, it's lagging. Okay. Yeah. So I also did the same. मैं pencil लेके बैठती थी and question paper में ही I used to write the section number और the provisions की case study पढ़ते ही time, and then जो नहीं आता था I used to circle it, and लास्ट में जब टाइम मिला तब मैंने उसको देखा, जितना आता था I did it first. तो बहुत सारी स्पेस छोड़ रखी थी मैंने, and I used to skip to the next question. तो बिल्कुल रुकी नहीं अगर कुछ नहीं आता था। राइट। सो आई थिंक हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिया, बस एक चीज रह गई है जो कि मैंने लिखी हुई भी नहीं थी, बस मुझे अभी बात करते हुए जितनी समझ आई, क्योंकि आई वेंट इनटू दैट जोन जहाँ पे वो बड़ी सी केस स्टडी होती है 3-4 पेज की, उसके बाद मस्त क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं एंड सब सॉल्व करना होता है। मतलब मेरी तो चलो एक अलग स्ट्रेटेजी थी, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। बाकी आप लोगों का क्या रहता था कि जब केस स्टडी दी हुई है तो पहले केस स्टडी पढ़नी है, पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्योंकि केस स्टडी में मुझे लगता है कई बार बहुत इररेलेवेंट चीजें दी हुई होती है जिनके बारे में कोई नीचे क्वेश्चन भी नहीं होता। सो वो मुझे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे 4 महीने का यार टाइम लिमिटेड है, आखिरी में 25 मिनट बचे हैं, और मतलब कितना ही टाइम बचा था इसके पास, पता है काफी कम टाइम था, 25 मार्क का क्वेश्चन रह गया। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैसे लगा कि मतलब मॉक्स देके जो लर्निंग बनी कि कैसे अप्रोच करना चाहिए केस स्टडी क्वेश्चन को, ये बहुत जेनरिक काइंड ऑफ आंसर मैं लुक फॉरवर्ड करूँ। या रश्मि, यू कैन टेल। Actually, there's some network problem. I can hear you late. So the thing is, I really couldn't hear your question. So I think Rajvi and Chami should answer this. Rajvi, you can tell. Yeah, so basically a lot of students do like refer the question and the MCQs first and then read the case study. But personally for me, I cannot see a question without understanding the base of what it is on. So I used to refer the case study first, like not ekdam word to word, but quickly refer it first, then see the question and then again come back to the case study to see कि कौन सा question कौन से paragraph में से पूछा है. But like I would start with reading the case study and marking the important points and then going on to the questions. Okay. Right.
Completely agree with what Rajvi said. Overview थोड़ा सा चाहिए, वो glance चाहिए देखने के लिए कि questions क्या है. So completely agree with what Rajvi said. Yeah, you at least need to know the names. I so used to work out all the names so that I know. Actually, Right. you need to know Right. their relationships and all. So case study first and then questions. एग्री। ठीक है, मतलब मेरे को लगता है इंटरनेशनल टैक्स में ज्यादा जरूरत रहती होगी इस चीज की कि हाँ। एटलीस्ट आपको हाँ। केस स्टडी पहले पता हो, फिर आपको क्वेश्चन का समझ आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक लॉज इज मोर लाइक अ कॉपी पेस्ट टाइप ऑफ थिंग, जहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाता है कि व्हाट दे आर आस्किंग, एंड कई बार हो सकता है केस स्टडी की उतनी रेलिवेंस भी ना बनती हो वहाँ पे, बट अंडरस्टैंडिंग की डिटेल थोड़ा, इंटरनेशनल टैक्स एक इंटरप्रेटिव पेपर है, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी, तो कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है आप जिससे केस स्टडी सॉल्व करो। सो आई थिंक काफी अच्छे से हमने सब कवर कर लिया है। वन पीस ऑफ एडवाइस एक एक करके आप दे दो, मतलब जो लगता है कि आपको इंटरनेशनल टैक्स में आपके लिए वर्क किया, एंड साथ साथ अपने इंटरनेशनल टैक्स के मार्क्स भी बता देना, सो दैट पीपल गेट टू नो कि अभी तक हम जिनका इंटरव्यू देख रहे थे या जिनकी बातें सुन रहे थे उनके एक्चुअल में कितने आए 100 में से। तो या नाउ वी कैन स्टार्ट विद रश्मि। रश्मि, डिड यू गेट माय क्वेश्चन? Yeah. So I scored 83 out of 100. Great. And one piece of advice would be, I think consistency was the thing, and focusing on the case study actually worked for me because मैंने बार बार बुक नहीं पढ़ी, मैंने केस स्टडी के साथ ही बुक पढ़ी। So practice बहुत जरूरी है। So go with the case study, focus on that. Yeah. Charmi. Yeah, I scored 75 marks in international taxation. And one piece of advice is, कभी भी कुछ नया देख के ट्राई करो, तुम अप्लाई करो rather than directly jumping on the solution. जब तुम प्रैक्टिस करते हो तब प्लीज अप्लाई करो कि तुम होते एग्जाम में ये क्वेश्चन होता तो तुम कैसे प्रिपेयर करते, एंड मेक श्योर एक राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत ही जरूरी है। तो ये मेरे दो की टेक अवे थे कि one, you have to kind of learn to apply your concepts, and second, one, writing practice is very necessary to give you a reality check of what an elective paper looks like. Yes. So I secured 80 marks in international tax, and I think the same thing. So you have to plan very well what you are studying from where, and you have to ensure कि 4 घंटा like should be the most productive. तो उसके लिए planning बहुत जरूरी है, and focusing on your concepts and not getting bogged down by looking at the difficult papers. In fact, like you should make a note उसमें जो भी नया है, या you should get trick points कि ऐसा ऐसा institute target कर रहा है, so we should also refer something, say the CBDT circulars or something like that, and try to find what the institute is thinking and focus on the concepts. I think that will make you ace this paper. Don't get afraid by international tax. That's all I want to say. इंटरनेशनल टैक्स का डर भगाना है तो बेसिकली मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे डर भागने वाला नहीं है। एंड आई थिंक इन तीनों ने काफी अच्छी मेहनत करी है, तभी 75 से लेके 81 की रेंज में नंबर आए हैं। एंड वो मेरे हिसाब से यार आसान नहीं है, कीपिंग इन माइंड कि थ्योरेटिकल सा पेपर है थोड़ा, एंड एग्जामिनर के पास इतनी डिस्क्रिप्शन है, आप कहाँ तक इतने नंबर खींच सकते हो, बट यू ऑल हैव डन वेल एंड डेफिनेटली उसका रिजल्ट अच्छा ही रहा है। So yeah, thank you so much for taking out your time on this precious occasion of Holi and spreading your colorful knowledge with all of us. And thank you so much for being here. Pleasure. Yeah, thank you so much, Shubham. We had a great time. So yeah, let's stay in touch and continue to spread knowledge because that's what works in the end. And yeah, thank you so much. Bye. Yeah, bye. Bye.